Hello, everybody. This is your science educator Nobomita Bhattacharjee, and yes, right here is my introduction. As you all can see, I have done my master's in nanoscience and technology, and I do have a teaching experience of 2.5 plus years. Have been teaching a lot of students, and before I got into this whole teaching field, I used to be a research associate in IIT Guwahati. Alright, and now I'm going to tell you about some benefits of being in Unacademy platform. Yes, you are getting all the notes for free, absolutely right. But what if you want to attempt some quizzes? Let's say that you love T20 matches and you love quizzes, right? So if at all you want to do that, then this is the free test links that you can see right here. You can go into this link. Also, the link is there in the description box. And please don't forget to use the code NOBITA, NOBITA. Apart from the free test series that I just told you, we do have practice sections for you, and these are specifically for science and mathematics. So please do go check out the practice sections. अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं and you want to practice a lot of questions, आपको सवाल कहाँ से मिलेंगे, उस सब के लिए आपको जाना है प्रैक्टिस सेक्शन में, जो कि है यहाँ पे, और इसके लिए भी आपको कोड इस्तेमाल करना है नोबिता. Apart from this, we do have a lot of free classes which are also known as special classes in Unacademy's platform. So if you want to be in the special classes, then you have to unlock the special classes, which is the new system that we have right now. So go to the special class, download the Unacademy app, learning app from the Google Play Store, and then you can find a lot of special classes. If you want to unlock them, again, don't forget to use the code NOBITA. Apart from all of these free classes, if you are liking the content that we are providing you, and let's say that you want to learn from us even better, then you can go ahead with the Plus and Iconic classes, where the India's top educators teach you. There are regular doubt solving classes, so I can promise you that you will never walk alone with any doubt. Alright, so we do have a lot of classes. You can go check out the Unacademy website as well if you want to know about all of these. Plus and Iconic classes are the paid platforms where you get a lot of benefits, specifically like doubt solving classes, live quizzes, test series, practice sections. And in Iconic class, you get personal mentor and parent connect as well. And if you want a 10% discount, then don't forget to use the code NOBITA. And now, फटाफट let's start the live school daily का dose. तो चलो everybody, देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. Yeah? Bye-bye. Hello everybody, this is your science educator Nobomita Bhattacharjee, और आज हम पढ़ने वाले हैं guess what? क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. आई नो आप सब लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, बट एनीवे आई एम गोइंग टू राइट द नोट्स, और मैं साथ ही साथ आप लोगों को एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी. तो चलो देखते हैं ये केमिकल रिएक्शंस होता क्या है. लेट मी टेल यू वन थिंग. क्लास 6 और 7 में याद होगा केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस करके एक चैप्टर पढ़ा था आपने, और उसमें आप लोगों को बताया गया था कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, राइट. सो डू यू रिमेंबर व्हाट आर दोज केमिकल चेंजेस? दोज केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है. अब अपन आते हैं एक सवाल पे, और सवाल है कि व्हेन कैन वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. हम ये कब कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन जो है हो गया, राइट. चलो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आती है, और वो 4 पॉइंट्स हैं. चेंज इन द स्टेट एज इन सॉलिड लिक्विड गैस, उत्तर प्रदेश से बिहार तक का नहीं, ठीक है. इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब गैस इवॉल्व होती है, गैस निकलती है. चेंज इन कलर, थोड़ी बहुत कलर चेंज हो जाती है, और साथ ही साथ आप लोगों को दिखेगा कि चेंज इन टेम्परेचर. ये 4 चेंजेस या फिर ये 4 बदलाव अगर आपको दिख गए तो आप कह सकते हो कि एक केमिकल रिएक्शन हो गया है. अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे, और दूसरा सवाल है व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन. चलो पता लगाते हैं. येस आई नो, हमने अभी पढ़ा कि केमिकल चेंजेस आर केमिकल रिएक्शन, बट केमिकल इक्वेशन क्या है? लेट मी राइट इट डाउन. द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, आप जैसे एक केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करोगे. अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपके सामने से कोई इंसान अगर रास्ता क्रॉस कर रहा है, और अगर मैं आपको कह दूँ कि बच्चा
फट से मेरे को बता दो कि उस आदमी को आप या उस इंसान को आप डिस्क्राइब कैसे करोगे। आप मेरे को आते ही बोल दोगे कि मैम 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 उस इंसान ने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी है, उनके बाल थोड़े से लंबे हैं, उन्होंने ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी है, समथिंग लाइक दिस, राइट? यू गोइंग टू डिस्क्राइब दैट पर्सन लाइक दिस। द सेम वे आप जैसे एक केमिकल रिएक्शन को या केमिकल चेंज को डिस्क्राइब करोगे कि वहाँ क्या हुआ, और ऐसा नहीं कि एक पन्ना लिख दिया उसके बारे में। आपको ये नहीं करना, आपको शॉर्ट फॉर्म में सिंबल्स, एरोज, प्लस साइन और जो है उन एलिमेंट्स का छोटा छोटा फॉर्म लिख के जब आप समझाओगे कि ऐसा सा कुछ एक केमिकल चेंज हुआ, दैट विल बी योर केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अगर करोगे तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। नाउ द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो अ केमिकल चेंज, मतलब जो चीज़ें केमिकल चेंज के थ्रू जाती है या फिर जो केमिकल चेंज करवा सकती है, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। और ये रिएक्टेंट्स को आप कहाँ लिखते हो? उनको लिखते हो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, दो रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस होगा, ठीक है। अब दूसरा, जो नया चीज़ बना, जो नई चीज़ पैदा हुई, द न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड, दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में भी अगर दो नई चीज़ें बनती हैं तो उसको आप प्लस साइन लिख दोगे। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज द प्रोडक्ट, जबकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वर रिएक्टेंट्स, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, तीसरा सवाल, व्हाट इज अ वर्ड इक्वेशन? हमने केमिकल इक्वेशन समझ लिया, अब हम समझते हैं वर्ड इक्वेशन क्या होता है। आसान सा चीज़ है बच्चा। देखो यहाँ तक में हम लोगों ने सिंबल्स इस्तेमाल किए थे और एरोज इस्तेमाल किए थे। अब अगर मैं इसी को शब्द में लिखूं, इसी चीज को इफ आई राइट इट डाउन इन वर्ड्स, राइट, देन इट इज गोइंग टू बी अ वर्ड इक्वेशन। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स through an arrow, same thing, just you have to use the word instead of the symbols. Am I clear here? आसान है कि नहीं है, राइट? चलो आगे बढ़ते हुए, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करते हो, वही सेम तरीका बच्चा। रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, प्लस साइन बीच में अगर 2 या 3 रिएक्टेंट हुए, और अगर प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स को आप राइट हैंड साइड में लिख दो, उनके बीच में भी एक प्लस साइन होएगा, बस, ठीक है। इतना ही पढ़ना है हमें, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये जो एरो होता है, आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि यार ये एरो को किधर दिखाए, मतलब बहुत ही आसान है। देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के तरफ होना चाहिए एरो हमेशा। एरो दिखाएगा कि ये रिएक्शन जो है अपने राइट हैंड के तरफ हो रही है, मतलब उसने वो शुरू हुआ लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड तक पहुंचा एरो, ठीक है। तो द एरो हेड विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड नॉट द रिएक्टेंट्स, ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हुए लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। इसमें मैंने इस चैप्टर का मैंने ऐसा किया है कि मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए और मैंने क्वेश्चंस और आंसर के हिसाब से आप लोगों को नोट्स दे दिए, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। लेट्स फाइंड आउट हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। आई एम प्रिटी श्योर यू आर लाइक कि मैम क्या बता रहे हो, ये तो बहुत ही आसान है, बट फिर भी लेट्स से दैट अगर आपको ये सवाल आ गया है 2 मार्क के लिए तो आप लिख देना। केमिकल इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हो कि केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्साइज मतलब उनको बहुत ही छोटा कर सकते हो आप, एंड यूजफुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद भी है ना केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ज़िंदगी में या फिर अपने चारों ओर इतने सारे केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, एंड ऑफ कोर्स यू वुड वॉन्ट टू नो कि ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर आपके दिमाग, ऑफ कोर्स इफ़ यू आर द क्यूरियस न्यूरॉन देन यस यू वुड वॉन्ट टू नो दैट। तो केमिकल इक्वेशंस इतनी सारी होती रहती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है ना इतना कि हर बार एक एक भर भर के पन्ना लिखे और समझाए कि केमिकल इक्वेशंस क्या है। तो समझ लेते हैं, केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ यू यूज़ केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। हमेशा क्या करो, फॉर्मूला इस्तेमाल करो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस O2 विच गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक बात बताओ ज़रा, क्या ये बैलेंस्ड है? बिल्कुल नहीं। तो चलो आते हैं, अब हम समझते हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन विच एक्चुअली इज समथिंग दैट मेक्स अस इच आवर हेड अ लॉट।
बिलीव इट और नॉट, जब मैं छोटी थी, जब मैं क्लास 10 में थी, मैंने भी अपना सर खुजलाया ना बहुत बार कि ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। आसान तरीका है, बट उससे पहले आप लोगों को एक समझना पड़ेगा लॉ। लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो ऐसे तो लॉ का नाम सुन के लग रहा है कि ओ भाई साहब ये क्या चीज़ है, बट ट्रस्ट मी ऐसा कुछ टफ है नहीं। ये लॉ आपको कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का अगर वजन देखोगे तो वह हमेशा हमेशा सेम होगा। जो भी केमिकल एलिमेंट्स है उनका टोटल मास हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। रिएक्टेंट साइड मतलब LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा सेम रहता है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम रहती है बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो चलो जानते हैं कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये हमेशा सेम रहता है मतलब कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा। वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हियर आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विच विल गिव मी जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ज़रा काउंट करो, ये देखो जिंक लेफ्ट हैंड साइड में एक है और राइट साइड में भी एक है। H2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में भी 2 है। सल्फर आप अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 4 है और राइट साइड में 4 है। अब आप मेरे को बताओ कि क्या इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना ज़रूरी है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट्स ऑलरेडी बैलेंस। व्हाट डू यू थिंक? इट इज़ बैलेंस, राइट? तो ठीक है, इसका मतलब है हमने अभी तक सीखा नहीं कि हमें बैलेंस कैसे करना है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और अब हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं Fe प्लस H2O विच विल गिव यू Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, हमने लिया आयन और हमने लिया वाटर, जो हमें मिलेगा आयन ऑक्साइड, और हमें हाइड्रोजन मिलना चाहिए। तो ज़रा देखो इधर, देखो आयन 1 है लेफ्ट साइड पे, पर राइट साइड में 3 है। हाइड्रोजन 2 है राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 1 है बट ऑक्सीजन अपने राइट साइड में 4 है। इसका मतलब हमें इस चीज़ को बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, हम इसको दोबारा लिखते हैं। आयन को आयरन लिख दिया, एक ही है, और वाटर के साथ हमने लिख दिया है 4, हमने आगे लिख दिया 4, तो 4H2O हो गया। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो कि इसको हमने राइट साइड को हमने बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं करी, उसको एकदम जैसा है वैसे ही रहने दिया। और अब हमें दिखता है कि हाइड्रोजन बन गया है 8 लेफ्ट साइड में, जबकि राइट साइड में हाइड्रोजन 2 का 2 रहा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम राइट साइड में भी 4 जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो राइट साइड में भी 8 हो गया और लेफ्ट साइड में भी 8 हो गया। दिख रहा है आप लोगों को? यस, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम देख रहे हैं कि आयन में थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, आयन राइट साइड में 3 है, लेफ्ट साइड में 1 है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में 3 कर देते हैं, 3 जोड़ देते हैं। तो हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि 3 आयन लेफ्ट साइड में, 3 आयन राइट साइड में, 8 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, 8 हाइड्रोजन हमारे राइट साइड में, और 4 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, 4 ऑक्सीजन राइट साइड में। बस हो गया, बराबर हो गया ना बैलेंस्ड। नाइस, तो ये समझ आ गया आप लोगों को। इसी तरह आप लोगों को भी बैलेंस करना है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है, बेसिकली आप क्या करोगे, सबसे पहले एक आसान सा एलिमेंट उठा लो और उनको बैलेंस कर दो। फिर दूसरा एक एलिमेंट लो, उनको भी बैलेंस कर दो। तीसरा एलिमेंट लो, उनको भी बैलेंस कर दो। बस आपको यही चीज़ करना है, आपको बस देखना है कि दोनों तरफ नंबर सेम हो। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। चलो आपने केमिकल इक्वेशन देख लिया, आपको पता चल गया कि रिएक्शन हो गया, पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि इधर गैस कहाँ से निकला, कोई कलर चेंज हुई कि नहीं, कौन सा सॉलिड है, कौन सा एक्वस है, कौन सा लिक्विड है। आप वो भी कर सकते हो। अगर आप एक केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि उनके फिजिकल स्टेट्स, मतलब एलिमेंट्स के फिजिकल स्टेट, be it solid, be it liquid, be it gas और be it aqueous। और aqueous का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि पानी में डिजॉल्व हो, दैट इज़ नोन एज aqueous solution। ठीक है,
आप AQ अगर लिख दोगे ब्रैकेट में तो लोगों को समझ आ जाएगा कि ये तो एक्वस फॉर्म में है। अगर आप सिर्फ S लिख दोगे तो समझ आ जाएगा लोगों को कि ये तो सॉलिड में है। अगर आप L लिखोगे, गैस लिखोगे, या फिर अगर आप रिएक्शन में एक ट्राइंगल बना दो तो लोगों को समझ आ जाएगा कि इधर हीट की ज़रूरत है। ठीक है, ऑलराइट, आया समझ इतना तक? तो दैट इज़ हाउ यू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हुए बस इतना ही नहीं, इनफैक्ट आप सिर्फ ये फिजिकल स्टेट्स नहीं लिखते हो, यू कैन ऑल्सो राइट टेम्परेचर कितनी ज़रूरत है, प्रेशर कितनी ज़रूरत है, कैटलिस्ट कोई ज़रूरत हुई नहीं, ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हो। और अब आप सर खुजलाओगे कि मैम ये कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट होता है वो बच्चा जो कि एक केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होके उस केमिकल रिएक्शन को धीमा भी कर सकता है या फिर उसको और तेज़ कर सकता है। ठीक है, ऑलराइट, जैसे कि ये देखो, मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ यहाँ पे Na2SO4 मैंने साथ में लिख दिया है एक्वस, AQ लिख दिया है तो लोगों को समझ आ गया कि ये एक्वस है। BaCl2 यहाँ पे भी मुझे दिख गया है कि ये भी AQ लिख दिया है मैंने पास में, मतलब एक्वस है। बट BaSO4 वो मैंने लिखा है साथ में S, इसका मतलब है वो सॉलिड है। आया ना समझ? इजी है, राइट? अब हम चलते हैं द मेजर इम्पॉर्टेंट, the most important part of this chapter, that is types of chemical reaction. सो इस चैप्टर में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कि आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करोगे और दूसरा ये कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो बड़ा आसान है यार, मतलब क्या ही बताओ, मैं ये सबको समझ आ जाता है और जो ये चीज़ आपने पढ़ी भी है बहुत दिनों से, राइट? तो ये देखो मैं ले रही हूँ यहाँ पे क्विक लाइम, ठीक है, CaO प्लस H2O, और यहाँ पे बन जाता है मेरे पास स्लेक्ट लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस स्टेट में है और थोड़ा सा हीट भी मिल रहा है यहाँ पे। ज़रा इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपको लग रहा है ना कि कोई एक एलिमेंट था जिसका नाम हमने लग दिया A, कोई दूसरा एलिमेंट था जिसका, एलिमेंट तो नहीं सॉरी, कंपाउंड, ठीक है, कोई एक कंपाउंड था जिसका नाम हमने रख दिया A, एक दूसरा कंपाउंड था जिसका हमने नाम रखा B, और ये दोनों मिल के हमें मिल गया है AB। कैन यू सी दैट आई कैन एक्चुअली कॉल दिस एज एडिशन रिएक्शन, जिसपे ऐड हुई है, चीज़ें जुड़ गई है, राइट? सो इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स जुड़ जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाते हैं, और इसी रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सब्सटेंस कंबाइन करती है, जुड़ जाती है, दैट इज़ वाई द नेम इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा आता है हमारे पास कि अब अगर आपको ये पता चल गया कि ये जुड़ गई है, देर आर सम रिएक्शंस, है ना, ये जुड़ गई है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको एक और रिएक्शन के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपके किताब में ज़्यादा बड़ा सा कोई डेफिनेशन है नहीं, बट लेट मी राइट इट डाउन हियर। अभी आपने देखा कि ये जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलाया था तो साथ में हमें मिला था हीट प्रोडक्ट साइड में, करेक्ट? तो ऐसे कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनके साथ हीट निकल के आती है, हीट इज़ इवॉल्व, और ये जो रिएक्शंस होती है जहाँ पे हीट ऐसे निकल के आती है उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चा लोग? एक्सोथर्मिक, EXOTHERMIC, थर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हुए, पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्चुअली हमारी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, दीज आर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई एम नॉट किडिंग, रियली सीरियसली, दीज आर ऑल एब्सोल्युटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो आपने पहले ही पढ़ा कि एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें चीज़ें जुड़ रही हो। अब इधर देखो, मैंने लिया है फेरस सल्फेट, ठीक है, और यहाँ पे से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तीन चीज़ें बन गई, Fe2O3, SO2 एंड SO3, तीन चीज़ें, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई है। तो क्या आप देख रहे हो, एक बड़ा सा कंपाउंड तीन चार चीज़ों में बट गया है, एंड दैट माय डियर स्टूडेंट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे चीज़ें टूट गई है।
So can I write it down as when a single reactant breaks down to give simpler products, it is known as decomposition reaction. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अच्छा, मान लो आप अपने बड़े ही बेस्ट फ्रेंड के साथ पार्टी में जाते हो और आप पार्टी में जाके पता करते हो कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो किसी और के साथ दोस्ती मनाने लग गया. आपको बुरा लगेगा ना, राइट? यू विल फील लाइक यू वर रिप्लेस्ड. ठीक इसी तरह इस रिएक्शन में भी, अब मैं एग्जाम्पल लेने वाली हूँ. देखो, आयन लिया आपने और आपने लिया कॉपर सल्फेट. क्या आप देखते हो कि रिएक्शन के बाद, मतलब पार्टी के बाद, आपको यहाँ पे दिख रहा है आयन सल्फेट AC हो गया है और कॉपर को अलग निकाल दिया गया है धक्के मार के. एंड यस माय डियर स्टूडेंट, अ रिएक्शन वेयर one element replaces or displaces or removes another element from its own compound, उसी को कहते हैं displacement reaction. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड था, कॉपर के साथ सल्फेट ही था, बट जैसे ही आयन आया, आयन इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था कि उसने इतनी ज़्यादा बातचीत करी कि कॉपर को धक्के मार के निकाल दिया. कॉपर बेचारा आस पड़ोस में बैठ के गा रहा है कि लोनली आई एम सो लोनली. क्या ही करें, है ना? तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मान लो कि 4 लोग पार्टी में जाते हैं, ठीक है? 4 लोग पार्टी में जाते हैं. लेट्स से कि राहुल अजय और राहुल अजय नहीं, चलो हम ऐसा कुछ नाम लेते हैं जो कि समझ आ जाए हमें. नवीन और सनी, और इधर बनी और क्या नाम दे यार इनको, क्या नाम दे? बनी और ठीक है, बनी और बताओ यार, कोई नाम वाम बताओ. नाम ही नहीं याद आ रहा. चलो ठीक है, बनी और कोई, ठीक है. तो ये नवीन और सनी, क्या आप देख रहे हो यहाँ पे कि बनी और सनी एक साथ आ गए और नवीन और जो भी कोई और था वो दोनों एक साथ आ गए. तो क्या आपने देखा कि यहाँ पे भी एलिमेंट्स ने एक दूसरे को रिमूव किया है? देखा आपने देखा यहाँ पे. और आपको पता है ये जो बेरियम सल्फेट बना यहाँ पे है ना, बेरियम सल्फेट, मतलब बनी और सनी जो यहाँ पे बने हैं, बनी और सनी में एक ना आयोन्स का एक वो होता है, ठीक है? आयोन्स का एक जोड़ होता है यहाँ पे. तो मैं यही चीज़ यहाँ पे लिखने वाली हूँ, आप ज़रा देखना ध्यान से. हाँ, तो मैंने लिख दिया है कि रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स. तो आप देख पा रहे हो कि बेरियम के पास है 2+ और सल्फेट के पास है 2-, और इन दोनों में एक एक्सचेंज आयन्स का एक एक्सचेंज हुआ, मतलब लेन देन हुआ, और दोनों न्यूट्रल बन गए. और इसी को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो मतलब रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, दैट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट. या तो फिर आप ऐसे नवीन और सनी और बनी और कोई और, इनके साथ भी ऐसे रख सकते हो ध्यान, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि AB और CD अगर जाते हैं किसी पार्टी में और कौन बाहर आता है, आपको दिख रहा है कि आपको मिलेगा C और B और आपको मिलेगा A और D, ठीक है? सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऑलराइट, अब चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम समझते हैं अपना सबसे प्यारा और जानलेवा, नींद उड़ाने वाला एक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसका नाम है. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं जिंक ऑक्साइड, कार्बन जो कि हमें दे रहा है जिंक, और कार्बन मोनोऑक्साइड. ज़रा ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जिंक के साथ ऑक्सीजन है, पर राइट साइड में जिंक के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, बट राइट हैंड साइड में कार्बन के साथ ज़रूर एक ऑक्सीजन है. तो डू यू सी दैट देयर हैज़ बीन एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर हैज़ बीन अ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. जिंक में से ऑक्सीजन खो गया और कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया. तो ये जो खोना पाना जो रिएक्शन है ना, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. तो कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई और जिंक की रिडक्शन हुई, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है. इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, एंड इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी reduced. Isn't this easy? This is very 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 easy, right? And by the way, अगर आप लोगों को ये फिर भी नहीं समझ आया तो एक छोटा सा
1 मिनट का एक वीडियो है रिडॉक्स रिएक्शन, ज़रा जाके उसको देखो और चमक जाएगा, है ना। ठीक है, अब एक बात करते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। आपको क्या लगा मैं क्या ऐसे ही पढ़ा रही हूँ उसको, हाँ ट्रिग्नोमेट्री है कि आप लोगों को कभी ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं आएगी? नहीं 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 भाई साहब, ये रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी चीज़ है जिसको आप हर वक्त अपने आसपास हमेशा देखते हो। कोरोजन इज समथिंग दैट वी ऑलवेज सी। लोहे में जंग लगता ही लगता है। नया आयरन लोगे तो वो बिल्कुल ही शाइनी चमकता हुआ चीज़ आता है, बट कुछ टाइम के बाद आपको दिखेगा वो एक रेडिश ब्राउन पाउडर में बदल जाता है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ लोहे के साथ ही नहीं होता, आपको पता है ये कॉपर के साथ भी होता है। नया नया कॉपर लाओगे, ब्राउन कलर का होता है, मस्त चमकता है, बट थोड़ा टाइम दे दो ग्रीन कलर बन जाता है। अब नाउ आई नीड टू टेल यू समथिंग, आयरन लोहे पे जब कोरोजन होता है तो उसको हम रस्ट बोलते हैं, जंग पड़ती है उस पर। बट आपको पता है क्या, कॉपर पे जब ये कोरोजन होता है उसको बोलते हैं हम पैटिना। और ये पैटिना किससे फॉर्म होता है, इसमें होता है कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिलके बनता है कॉपर पैटिना। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है बट मैं बता रही हूँ आप लोगों को। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, acids etc, it is said to be corroded, मतलब it is said to get corroded, and this process is called a corrosion। मतलब एक मेटल को जब अटैक किया जाता है, किससे, सब्सटेंसेस सच एज मॉइस्चर मतलब पानी, एसिड तो आपको पता ही है, इसी को कहते हैं कोरोशन। ठीक है, ऑलराइट, एंड बाय द वे कोरोशन के बारे में हम ये 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और सिंस मैंने आपको कॉपर पैटिना के बारे में बताया है तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि कॉपर पैटिना बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट से। ठीक है, अब एक दूसरा मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है रैंसिडिटी। ओके, सीम्स लाइक अ न्यू टर्म बट लेट मी टेल यू, फैट्स और ऑयल्स को अगर आप खुला छोड़ देते हो तो कुछ दिनों के बाद वो एक अजीब सा स्मेल और एक अजीब सा टेस्ट पैदा हो जाता है उसमें, और उसी को कहते हैं रैंसिडिटी। आसान था ना चैप्टर? And with this note guys, this is me Nobamita Bhattacharjee signing off from this video. I hope you all understood whatever I have taught you. If not, then do let me know in the comment section and I will try my best to explain it to you even better. Alright, see you all. Bye bye. Have a nice day.